عنوان گفتگو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہونے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ آج کا ہمارا عنوان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے متوجہ ہونے سے، یعنی حضور کا خیال آ جانے سے، نماز کے اندر حضور کی طرف توجہ کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قاری صاحب کو ایسا کہنے کی یا اس عنوان کو بیان کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ ضرورت یہ ہے عزیزان گرامی قدر، کچھ لوگوں نے باقاعدہ اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور کچھ بد نصیب لوگوں نے کتابیں لکھ دی ہیں اس بات پر۔ اپنی کتابوں کے اندر وہ لکھ گئے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال نماز میں آئے، اس سے بہتر ہے کسی جانور کا خیال آ جائے۔ اس کی انہوں نے وجہ بھی لکھی ہے، وہ جی تعظیم کی وجہ سے آئے گا تو وہ فلاں وجہ سے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس ضمن میں یہ پڑھنا، یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ کیا وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، یا جو اللہ کا قرآن اور میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہتا ہے یہ صحیح ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں 68 نمبر ہے اس کا، 68، مسلم شریف کے اندر اس کا 944 نمبر حدیث مبارکہ کا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وقانا طبعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخدمہ وصاحبہ، بڑی لمبی حدیث مبارکہ ہے۔ آئیے اس کے ترجمے کی طرف آتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، خدمتگاری اور صحبت میں میں نے زندگی گزاری۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف، یعنی طبیعت کا ناساز ہونا، جس تکلیف کے دنوں میں، یعنی جس بیماری کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہوا، وفات ہوئی، ان دنوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، حتیٰ کہ جب سوموار کا دن آ گیا اور لوگ نماز میں صفیں بنائے کھڑے تھے، اب صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، جناب ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، ہم پڑھ کیا رہے ہیں کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہم اس کا جواب پڑھ رہے ہیں۔ یہ توجہ رکھیں گے تو سمجھ آئے گی۔ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک بخاری اور مسلم میں یہ روایت لا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، سرکار نے حجرہ ام عائشہ صدیقہ کا ایک ونڈو سے، ایک کھڑکی سے پردہ اٹھایا اور کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھنے لگے۔ وہ جو چمن سجانے میں عمر بیتی تھی، وہ جو پودے لگانے میں عمر بیتی تھی، جن کو مالی پانی دے دے کر پودوں کو باغات بنا چکا تھا، اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ حضور کو علم تھا کہ میرے ظاہری وصال کا، پردہ فرمانے کا وقت آ چکا ہے، وقت وفات قریب آ چکا ہے، اب حضور اپنے بستر بیماری سے اٹھ کر پردہ اٹھا کر ونڈو سے دیکھ رہے تھے، اگر میرا ظاہری پردہ فرمانے کا وقت آ گیا ہے، یہ جو پودے لگائے تھے آج چمن بن چکا ہے، ذرا پردہ ہٹا کے دیکھوں تو صحیح اس چمن کی بہار کیسی ہے۔ حضور پردہ اٹھا کے دیکھنے لگے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آپ کا چہرہ قرآن کا ورق ہے، پھر آپ اتنا زیادہ مسکرائے کہ ہنسنے کے قریب پہنچ گئے۔ ہمیں خیال آنے لگا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خوشی سے ہمیں نماز توڑنی نہ پڑ جائے۔ اتنا حضور مسکرائے، دندان مبارک کی چمک پڑی، صحابہ کرام نماز کے اندر ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں ہمیں یہ خیال آنے لگا کہ یہ جو حضور مسکرا رہے ہیں کھول کے، یہ منظر دیکھنے کے لیے ہم نماز توڑ نہ بیٹھے۔ اور ابو بکر اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے،
ताकि सफ में शामिल हो जाए। उन्होंने समझा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए निकल रहे हैं। अब एक तरफ अकीदा यह दिया जाए, आप समझिएगा मेरी बात को, एक तरफ अकीदा यह दिया जाए कि नमाज में माज अल्लाह हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज फासिद हो जाती है, नमाज खत्म हो जाती है। इधर सहाबा है, नमाज पढ़ रहे हैं, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ाने वाला इमाम मुसल्ले से पीछे की तरफ आ रहा है कि लगता है हुजूर आ रहे हैं। आप बताएं मुझे, जो मुसल्ला छोड़ के पीछे आ रहा है उसको ख्याल नहीं आया? वो तो यूं समझे देख रहे हैं हुजूर को, मुसल्ला छोड़ रहे हैं। जब जनाब अबू बकर पीछे को हटे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ इशारा किया, फरमाया नमाज को मुकम्मल करो, और हुजूर ने पर्दा लटका दिया। और इसी दिन हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। गोया वो हुजूर आखिरी मंजर देखने आए। आप अंदाजा करें जिस वजह से हमने हदीस मुबारक का बयान, इधर सहाबा कराम है, वो हुजूर की झलक देखे तो नमाज के अंदर मुसल्ला छोड़ दे। उनका ख्याल ये हो कि हुजूर आएंगे, नमाज पढ़ाएंगे। सहाबा हुजूर का ख्याल आए मुसल्ले से पीछे हट आए, सरकार की झलक नजर आए तो मुसल्ले से पीछे हट के आ जाए, अपनी अपनी नमाज की फिक्र न करें, हुजूर का ख्याल की फिक्र करें। और आज कोई उम्मती उठ के कहे हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, आप खुद फैसला करिएगा घर जाकर, ये ठीक कहता है या सहाबा कराम का तरीका ठीक था? आप इससे अगली हदीस मुबारक, ये भी इसी ज़िमन में हदीस मुबारक है, इसका मुस्लिम शरीफ का नंबर है 949, बुखारी शरीफ का नंबर है 684, निसाई शरीफ के अंदर भी यह हदीस मुबारक मौजूद है और उसका नंबर है 893, अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी हदीस मौजूद है, 930 नंबर है इसका। अब आइए, हजरत साल बिन सादी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बनी अमर बिन औफ की आपस में सुलह कराने के लिए तशरीफ ले गए। पीछे से नमाज का वक्त आ गया, हुजूर सुलह करवाने गए हुए, पीछे से नमाज का वक्त आ गया। मुअज्जिन ने जनाब अबू बकर के पास आकर कहा, आप नमाज पढ़ाएंगे? अगर मैं अकामत पढ़ूं, चूंकि नमाज का वक्त हो चुका है। नींद तो नहीं आ रही, कह जरा सुभान अल्लाह। मैं आप नमाज पढ़ाएंगे? अगर मैं अकामत कहूं, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाए, हाँ अबू बकर नमाज पढ़ाएगा। लोग नमाज में थे, जनाब अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे, इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से तशरीफ ले आए। आप बढ़कर सफ के अंदर खड़े हो गए, जनाब अबू बकर नमाज पढ़ा रहे, सहाबा कराम पीछे नमाज पढ़ रहे, जमात खड़ी है, हुजूर अलैहिस्सलाम पीछे से आए, आप पीछे से ही आखिरी सफ के अंदर नमाज में शामिल हो गए। अब लोगों ने हाथ पे हाथ मारने शुरू कर दिए, ताली बजाना, उल्टे हाथ पे सीधा हाथ मारना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, फिर जनाब अबू बकर अपनी नमाज में मगन रहे। जब लोगों ने कसरत से हाथ मारे तो अबू बकर मुतवज्जे हुए, यानी पहले को 2-3 लोग पिछली सफ वाले हाथ पे हाथ मार रहे थे, फिर सारे नमाजी, सारे सहाबा कराम अपने हाथों पे हाथ मारने लगे। अच्छा यहां रुकिए, सारे तो नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर आखिरी सफ में आए हैं, सहाबा सबको पता कैसे चल गया हुजूर आ गए? सोचने वाली बात है ना, सारे सहाबा को पता कैसे चल गया कि सरकार अलैहिस्सलाम आ गए? अरे भाई, वो भी हदीस मुबारक है सरकार अलैहिस्सलाम के बारे में, फरमाया मेरे हुजूर जिस गली से गुजर जाते थे, कई कई दिनों तक, कई कई हफ्तों तक उन गलियों से खुशबू आती थी। जब हुजूर आए होंगे, खुशबू सूंघ के सहाबा को पता चल गया होगा कि हुजूर आ गए। सहाबा को हुजूर की खुशबू से पता चल गया होगा कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए हैं, हुजूर आ गए हैं। अब जब सारे लोग हाथ पे हाथ मारने लगे तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक मुतवज्जे हो गए, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया देख लिया। अब क्या हुआ, सरकार अलैहिस्सलाम सफों से आगे बढ़ते आए, सहाबा रास्ता देते गए, हुजूर बढ़ते गए। अब मुझे बताएं, अगर इनकी बात मान ली जाए कि नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, फिर सहाबा रास्ता किसको दे रहे हैं? तुम कहते हो कि नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, माज़अल्लाह, सहाबा रास्ता किसको दे रहे हैं? और जो रास्ता दे रहे हैं अपनी जगह छोड़कर, उनको ख्याल नहीं आया होगा, वो तो देखकर रास्ता दे रहे हैं। और फिर आगे चलिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया,
हुजूर को देख लिया, मुसल्ला छोड़ दिया। जब मुसल्ला छोड़कर पीछे आने लगे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पीछे से फरमाया, इशारा किया, फरमाया अपनी जगह पे जाने, इशारे से कहा खड़े रहो और नमाज मुकम्मल करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह हुक्म दिया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ उठाकर नमाज के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा किया। और भाई ये नमाज हो रही है, ये नमाज पढ़ी जा रही है। जनाब अबू बकर ने हाथ उठाए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा इतना करम कि इमामुल अंबिया मुझे कह रहे हैं नमाज मुकम्मल करो। यानी हुजूर जनाब अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ने तक तैयार हो चुके थे। यहां पे एक नुक्ता और भी है, अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़कर ये बता रहे हैं कि सिद्दीक मुसल्ले के काबिल है। आज का कोई बदबख्त उठकर अबू बकर पे उंगली उठाए, आज का कोई अंदर बाहर से काला उठकर जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात पर उंगली उठाए तो उसको सोचना चाहिए अबू बकर वो है जो मुसल्ले पे खड़े हो तो पीछे नमाजियों में आके इमामुल अंबिया खड़े हो जाते हैं। ये अल्लाह ने शान अता फरमाई है। सिद्दीक अकबर पाक ने हाथ उठाए, लेकिन फिर भी आप मुसल्ले पे खड़े नहीं रहे, फिर भी आप पीछे हटे, हत्ता के सफ के बराबर आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और आपने नमाज पढ़ाई। फिर जब सरकार अलैहिस्सलाम ने नमाज बड़ी मजे की हदीस मुबारक है, हमारा अकीदा तो आपको मिल ही गया, आप जरा लुत्फ भी लीजिए हदीस मुबारक का। सरकार ने सलाम फेरा और मैं ऐ अबू बकर, मैंने हुक्म दिया था कि नमाज पूरी करो, इसके बावजूद आपको अपनी जगह पर खड़े रहने से किसने रोका? क्यों नहीं रुके? मैंने तो कहा था पढ़ा दो। आप जनाब अबू बकर सिद्दीक का अदब, प्यार, मोहब्बत देखिएगा। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये सोचकर पीछे हटा कि अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर की ये जरूरत कि इमामुल अंबिया पीछे खड़े हो और मैं मुसल्ले पे खड़ा रहूं। हुजूर आपके अदब में ये गवारा न हुआ और मैं पीछे हट गया। अजीजा ने ग्रामी कदर, अब यहां वही बात है जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज माज़अल्लाह खत्म हो जाती है। अब आप खुद फैसला करिएगा कि सहाबा मुसल्ला छोड़ देते हैं, अबू बकर मुसल्ला छोड़ देते हैं, हुजूर आखिरी सफ में आ जाते हैं, सहाबा ताली बजाकर रास्ता दे रहे हैं, सफेद छोड़ी जा रही है, सरकार गुजर रहे हैं, सहाबा हुजूर को देख रहे हैं, आगे मुसल्ले पे खड़ा हुआ इमाम पीछे हुजूर को देखकर मुसल्ले से पीछे आ रहा है। आप भी ख्याल नहीं आया होगा। अब अगर कोई उठ के ये कहे तो इसका मतलब है ये झूठ बोल रहा है, ये गलत कर रहा है। जो कहता है हुजूर का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है, हुजूर के सहाबा का अमल बताता है कि जब तक हुजूर का ख्याल ना आए उनकी नमाज का मजा ही पूरा नहीं होता था। अच्छा, ये तो थी इल्मी और जनाब नकली दलीलें। अब एक अकली दलील आपके सामने रखता हूं। नमाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हम अत्तहियात पढ़ते हैं, फिर क्या फरमाया? फरमाया मेरे महबूब पे सलाम पढ़ो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, मेरे नबी पे तुमने नमाज के अंदर सलाम भेजना है। आप जब सलाम भेजेंगे तो ख्याल कैसे नहीं आएगा? अच्छा, फिर मैं एक छोटी सी चलो यहां पे मिसाल देता हूं। हाजी साहब बैठे हैं, हाजी अशरफ साहब, यूसुफ साहब बैठे हैं, इधर मेरे ये बच्चा बैठा है हैदर। मैंने हाजी साहब का सलाम लेना हूं, हाजी साहब का मैंने अब क्या करना है? हाजी साहब को करना तो है मैंने सलाम। अब मैं ऐसे करूं, हाजी साहब सलाम अलैकुम, आपको अच्छा लगेगा? मैंने इस बच्चे को सलाम करना हो तो मैं बोल हैदर अस्सलाम अलैकुम, ये कहेगा जनाब जब आपका दिल ही नहीं कर रहा, आप मेरे तरफ देख के मेरा सलाम नहीं ले सकते तो आप सलाम ही रहने दें। ऐसा ही है ना, एक बंदे को मैंने करना तो सलाम है और मैं उसकी तरफ देखूं ही ना, मैं इधर देख के उसको सलाम करूं, वो कहेगा सलाम रहने दो। और पता चला अल्लाह नमाज में कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, पढ़ के नमाज मुकम्मल कर ली है, मेरे महबूब पे सलाम भेज के तुमने नमाज को मुकम्मल करना है। अब सुनिए, जो कहते हैं नमाज में नबी का ख्याल ना आए और किसी दुनियादार को बगैर ख्याल किए सलाम करो, वो कहता है सलाम रहने दो। तुमने अल्लाह के नबी को कैसे समझ लिया कि बगैर ख्याल के सलाम कर लिया जाए? अल्लाह को पसंद आएगा एक दुनियादार बंदा जो कहता है कि मेरी तरफ ख्याल करके सलाम नहीं करना तो रहने दो, तो हम अल्लाह के नबी को कैसे बगैर ख्याल के सलाम करेंगे? तो इसका मतलब है पता चला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख्याल आ जाने से नमाज टूटने वाला अकीदा किसी और का है। हम तो कहते हैं सरकार का ख्याल ना है तो नमाज का मजा नहीं आता।
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔